Request our next very special guest, K. Divakar ji, to please share with us a few words. ನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಜರಾತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯಿ ರೂಢಭಾಯಿ ವಾಲಾಜಿರವರೇ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ರೂವಾರಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಶೇರ್ ದ ಡಯಾಸ್ with the august dignitaries in this evening. 3 years back, when I was the then advisor to the Chief Minister Sri B.S. Yediyurappa, Sachin Naik came to us one day. There was a mistrust and distrust was going on, especially in the software field, between Kannadigas and non-Kannadigas on the regional and municipal issues. At that juncture, he came with a novel idea of bringing a software called matadikanada.com. That means non-Kannadigas can speak Kannada and learn Kannada through a software. Such a novel program, more than 50,000 CDs were distributed, and many of the non-Kannadigas started speaking working Kannada. With that, he contributed to the social fabric and the harmony of the Bangalore city, and though it could not get highest publicity, I, as a media personality, come across with the positive effects of that program. Today, once again, being a corporate honcho, he is come with a novel idea of helping the rural Karnataka people. Sir, we are aware, now the Karnataka is divided into 2 parts. One is urban Karnataka, another is rural Karnataka. A man like me, who hails from the forest environs of Shimoga, still a graduate and an engineering graduate, come out of the rural colleges or colleges of Shimoga, Davanagere or Bhatkal or some places, he feels that he is a second-class citizen. What he needs is a training. Even in the modern interview and modern selection of the jobs, the personality test is going to play an important role. Towards, we have to equip them. Equip in a manner, because many people are not in financial position to come to Bangalore and stay here and get the training. Those people can get the training through the media, and our Kannada channels have reached almost 97% of the people of Karnataka. Through this channel, definitely it will help the rural people to have the equal strength or equal thought to compete with the Bangalorean. Hence, I congratulate you, Sachin, in many more days to come. Nowadays, in Karnataka, I think my friend Khadar will concur. Earlier, our politicians used to make mass marriages. Now, to attract the younger generation, they have started Udyoga Melas. Very recently, in my native town of Sagar, under the leadership of our Speaker Kagod Timmappaji, a Udyoga Mela was conducted from the Skill Development Department of Karnataka government. About 18,000 youngsters got the job. Many people think that they want to be engineers, they want to be lawyers, or they want to be professors and all. The skill and the hard work needs a training. Even an ITI graduate or a diploma graduate is not in a position to equip himself with the modern technology. There, Udyoga Mitra can be a better bridge between these people and thereby bring happiness on the face of the youngsters. I congratulate you, Mr. Sachin, in your new venture. I pray the Almighty to give you all the success, and really it's a matter of proud privilege, the constitutional head of our state and also a great personality. The first time I am sharing the dais with him, a person who has got an enormous experience as a cooperator, as a corporator, as a mayor, as a minister, as a speaker, and more than that, when our Honorable Prime Minister entered the Gujarat politics, he made the great sacrifice of vacating his assembly seat and made a democratic entry for the
great Narendra Bhai Modi ji, such a historical personality is the governor of our state. So I wish that under his blessings, this program will be a grand success. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words and your good wishes. With this, ladies and gentlemen, we arrive at the most awaited address for today. May I request His Excellency, Honorable Governor of Karnataka, Shri Vajubhai Rudabhai Vala, to please share with us a few words. कर्नाटक राज्य के हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय श्री यूटी खादर जी, आदरणीय श्री सचिन नायक जी, आदरणीय अभी क्या नाम दिवाकर सिंह जी, यहाँ उपस्थित सब सज्जनों, देवियों और मीडिया के मित्रों, आज सारे हिंदुस्तान में कोई जगह पर ऐसा उद्घाटन नहीं हुआ है जो आज यहाँ पर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ऑन टेलीविजन का आज उद्घाटन हुआ है। मित्रों, मैंने तो कर्नाटक में आकर मैं देखता हूँ कहीं न कहीं विशेषता जो देखनी है न, तो कर्नाटक में आई है। आदमी में काफी पोटेंशियलिटी भी है, एफिशिएंसी भी है, मगर जिस युवान और युवती में काफी पोटेंशियलिटी और एफिशिएंसी है, उसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी दे कांट सक्सेस इन हिज लाइफ। और सचिन नायक जी ने जो ग्राम्य विस्तार और शहरी विस्तार में जिस युवाओं में और युवती में पोटेंशियलिटी है, एफिशिएंसी है, उसी के पास जाकर उसी को अच्छी तरह से समझाकर योग्य जगह पर प्रस्थापित करते हैं। जो हरेक युवक और युवती इसी के लिए आज समस्या है कि हमने स्टडी कर ली, स्टडी करने के बाद वो सोचेगी हमको सर्विस मिलनी चाहिए, मगर हम देखते हैं कोई भी राज्य में होंगे तो सर्विस करने वाले लोग राज्य की बस्ती के मुताबिक कभी 1% से ज्यादा नहीं होता, 1% ही होता है। चाहे गवर्नमेंट में हो, पंचायत में हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हो, और ज्यादातर लोगों को प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। और प्राइवेट में जाने के लिए जो आदमी बेकार रखता है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो मेंटली भी इतना नर्वस हो जाता है कि क्या करूं क्या करूं, और नर्वस होकर सभी को क्या गाली देता है, ये मिनिस्टर ऐसा है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा है, या व्यापारी ऐसा है, साला बदमाश है। और यदि जो नौकरी मिल गई ने तो नहीं गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, हो इंडस्ट्रियलिस्ट भी अच्छा है, सब अच्छा लगते हैं। जब कवारा आदमी होता है न तो उसी को चैन नहीं पड़ती, और जब उसका मैरिज हो गया न तो आनंदित और प्रफुल्लित रहते हैं। सिर्फ 1-2 साल, मगर आनंदित और प्रफुल्लित रहते हैं। मित्रों, जो आदमी में पोटेंशियलिटी है उसको ढूंढकर ये सचिन नायक जी ने ये किया। उसमें से ये कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये सोशल एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी के लिए न तो गवर्नमेंट की मदद लेता है, न इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद लेता है, अपने आप ही ये कार्य कर रहे हैं। मैं सचिन जी को और यहाँ हेल्थ मिनिस्टर है उसको भी मैं कहूँगा कि जो युवाओं आज कर्नाटक है
वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला प्रांत है, यहाँ काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। या युवान भी काफी वो बिना नौकरी वाले हैं, ग्राम्य विस्तार वाले। यहाँ भी शायद होता होगा। हमारे गुजरात में जो इंडस्ट्रियल मेला लगाते हैं, पहले हम जाते हैं, हर एक इंडस्ट्रीज में हमारा ऑफिसर जाता है गवर्नमेंट के और उसको पूछता है कि तुम्हारे यहाँ कितने लोगों की जरूरत है और किस प्रकार की जरूरत है। आपको टर्नर की जरूरत है, फिटर की जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, कारपेंटरी वर्क करने वाले की जरूरत है, सफाई करने वाले की जरूरत है, किस प्रकार के लोगों की जरूरत है। और ऐसे 15 से 20 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले के यहाँ जाकर उसकी क्या डिमांड है ने, वो डिमांड पहले हम उसको जाकर पूछते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिसका नाम आया, उसी में से हम चुनकर और ओपनली भी कहते हैं कि आइए, ये इंडस्ट्रियल मेला लग रहा है और इसमें जिसको सर्विस की जरूरत है तो आइए। तो वहां पर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाले 5-10 लोग आते हैं, उसमें से सुबह से शाम तक सबका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे चाहिए उसमें से सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद कहते हैं कि ये सब लोगों को मैं मेरे डिपार्टमेंट में उसको सर्विस में रखूंगा। और हम गुजरात में करीब कम से कम नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम आदमी को नहीं, इससे ज्यादा आदमी को नौकरी दिला पाते हैं। दोनों को संतोष। आज इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छा आदमी चाहिए, अच्छा आदमी है, पोटेंशियलिटी है, एफिशिएंसी है, वो उसी को काम चाहिए। ये दोनों का हम मिलापन वहां करते हैं, यहाँ भी शायद होता ही होगा। ये श्रम और रोजगार की वजह से और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की वजह से होता है। मित्रों, आज समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है ने, वो समस्या गरीबी की है। और जो गरीबी है ने, वो बेकारी के बावजूद भी है। जो गरीब अनपढ़ लोग हैं, वो तो मानते हैं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, क्या करे, मजदूरी के अलावा मेरी जिंदगी में दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। मगर जो पढ़े हुए, जिन्होंने ग्रेजुएट हुआ, तो भी आज जिसको नौकरी नहीं मिलती, ऐसा होगा तो वो उसको फ्रस्ट्रेट होता है, निराश होता है। और हम जानते हैं कई आदमी ग्रेजुएट होने के लिए करीब 21 साल के उम्र में ही ग्रेजुएट होता है। 2-3 साल वो नौकरी ढूंढने में ही चला जाता है, उसकी उम्र भी होती है। जब नौकरी नहीं मिलती तब छोकरी भी नहीं मिलती। अच्छी नौकरी मिले तो लड़की भी उसके भाग्य में अच्छी आ सकती है। देखो, ये यंगस्टरों में फ्रस्ट्रेट होना ने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम नहीं है। यंगस्टरों के कोई भी वो फ्रस्ट्रेट होना नहीं चाहिए। और आज भी लेडीज का एजुकेशन इतना बढ़ रहा है, वो जो बॉयज और गर्ल्स एंड लेडीज बहुत इसी तरह से ही पढ़ते हैं। एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा कि जहाँ का बच्चा अनपढ़ हो। सभी लोग ग्राम्य विस्तार में भी पढ़ते हैं। और जितनी पढ़ाई ज्यादा होती है, इसमें से जो कोई लड़का होगा तो कोई अपना बिजनेस भी कर पाता है। मगर लड़की की समस्या यही है कि उसको सर्विस के बिना दूसरा कोई नहीं है। उसको ट्रेनिंग लेने के लिए, इसको फ्रस्ट्रेट न हो, इसी के लिए कुछ न कुछ सोचना भी होगा ही। आज सचिन नायक जी जो ये करते हैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ऑन टेलीविजन पर, वो उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने 1 साल तो प्रयत्न किया, प्रयत्न में काफी लोगों को रोजगारी मिली। वो उन्होंने ये भी दिया है, 1 साल में यदि 5 लाख लोगों को रोजगारी दी, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। जो इसी तरह से जब ये ट्रेनिंग टेलीविजन पर नहीं थी तो भी 5 लाखों को रोजी दी, और आज तो ये ट्रेनिंग टेलीविजन पर देंगे और 3 टेलीविजन पर
ये प्रोग्राम आएगा कि किस तरह से रोजगारी प्राप्त करना, और जो एफिशिएंट लोगों है वो एफिशिएंट लोगों को किस तरह से वो उसकी एफिशिएंसी को बाहर निकालने के लिए कार्य करना। ये काम सामाजिक काम है। सरकार भी अपना काम करते हैं। अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार तो काम करेगी, मगर ये सोशल काम की मैं देखता हूँ सरकार शायद काम करेगी तो इतने लोगों को तो रोजगारी नहीं दे पाती। डे बाय डे तुम जितने लोगों को रोजगारी देते हो उससे ज्यादा लोग वो परीक्षा पास करके बिन रोजगारी के लिस्ट में शामिल होता है। मगर जो इस तरह से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ऑन टेलीविजन पर चले और जो उन्होंने कहा है 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगारी मिलती है, तो वो जरूर कहेगा। अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो ट्रेनिंग के लिए के चाहे इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, मेडिकल वाले मेडिकल की लेते हैं, राजकारणी वाले राजकारण की ट्रेनिंग के लिए मैं कहूँगा कि कहा ट्रेनिंग कोई भी राजकारणी हो जिसके नेचर में राजकारण है, वो ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे ने तो जिसके यहाँ जाएंगे उसको बुलाकर वापस आएगा। ये तो उसके नेचर में ही होता है। राजकारणी तो कब जो परिस्थिति पैदा हुई और हाथ में जो बात आई वो उसको अच्छी तरह से निपट ले, वो राजकारणी। हम बोलते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल सबसे श्रेष्ठ वेपन क्या है, हथियार क्या है? तो बीरबल ने कहा कि साहब जो हाथ में आए वो हथियार। तुम कोई भी परिस्थिति में हथियार ढूंढने जाएंगे तो वो रखते नहीं कोई अपने साथ, हाथ में आए हथियार के अच्छा ऐसी बात है कि तो चलो। अकबर बादशाह ने एक एलिफेंट को दारू पिलाकर वो ग्राउंड में छोड़ दिया और बीरबल को कहा, बीरबल तुम जाओ ग्राउंड में और हाथी को अच्छी तरह से महात करो। जो दारू से मदमस्त हाथी था वो बीरबल की तरह उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। बीरबल ने देखा कि यहां में क्या हथियार, कुछ नहीं है, सारा ग्राउंड ही है, कुछ नहीं है यहां, मैं क्या करूं? तो उन्होंने थोड़ा देखा तो एक जो इल्लेस वाला कुत्ता यानी हड़काया कुतरा बोलते हैं ना, जिसको हड़क लगती है कुत्ता, ऐसा कुत्ता उन्होंने देखा बीरबल ने। तो बीरबल ने क्या किया, दो कुत्ते के पीछे जाकर उसकी टांग दोनों पकड़कर उसको घुमाकर हाथी पर फेंक दिया। तो हाथी पर फेंक दिया तो जो इल्लेस वाला कुत्ता है वो उसको बाइट करने लगा हाथी को, तो हाथी भी चक्रावे में चढ़ गया। और कुत्ता वो है उसका दिमाग, जिसको हड़क लगती है उसका दिमाग तो नहीं होता, वो उसको मजा आई, वो हाथी भी घूमने लगा। ये आखिरी स्थिति ये है कि हाथी भी वो निराश होकर बैठ गए। तब ये कहा कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, जो हाथ लगे वो हथियार। तो बीरबल वो पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन के कोई शिखामत देने की जरूरत नहीं है, उसको क्या करना कहने की जरूरत नहीं है, उसको क्या नहीं करना वो कहने की जरूरत है। वो आज भी एक को ढूंढेंगे ने तो वो ओरिजिनलिटी है। आप देखेंगे मंत्रिमंडल में, चाहे कर्नाटक में हो और हमारे गुजरात में हो, सभी मंत्री के लाइन में लगे एक जैसा दूसरा आदमी देख लो मुझे। कर्नाटक में जो आदमी काम करता है जिस तरह से, इस तरह से विचार और सोच करने वाला गुजरात में से देख लो। अभी तमिलनाडु में जो मंत्री है वो मंत्रीगण और कर्नाटक के मंत्री को रख दो, एक जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। जो एक जैसा दूसरा न मिले ने उसे ही राजकारणी कहते हैं। मित्रों, आज आनंद का प्रसंग है कि ये सचिन जी ने बहुत अच्छी तरह से इस देश के युवाओं को निराश न होकर आशावान बनाकर, जिस तरह से कोयले की खान में से, रफ में से डायमंड बनता है,
हीरा का संशोधन होता है। ऐसे भी मित्रों, आज मैं कहूँगा, मैं तो यहाँ 4 मास से यहाँ पर मैं आया हूँ, 4.25 मास हुआ है, मगर ये कर्नाटक की प्रजा में काफ़ी पोटेंशियलिटी है, काफ़ी इंटेलिजेंसी है। यहाँ चंद्रयान पर जाने वाले भी लोग हैं, मंगलयान को ढूंढने वाले भी लोग हैं। यहाँ सभी पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप देखेंगे ने, किसी के मस्तिष्क पर एक टपका मारेंगे ने तो उसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निकलेगी। एक एक आदमी इंटेलिजेंस है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। इतने इंटेलिजेंट लोग निराश न हो, उसको रोजगारी के लिए कुछ न कुछ मिले, इस दिशा में जो सचिन नायक जी ने प्रयत्न किया है, वो सचिन नायक जी का प्रयत्न को हम बहुत बहुत धन्यवाद दें और उसका जो प्रयोग है वो सफलता से सामाजिक प्रॉब्लम सोल्व करने में काम लगे, ऐसी शुभ भावना के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। यार, सचिन जी का प्रोजेक्ट पूर्ण करना है तो माता की जय तो जोरदार बोलना चाहिए। आज ऐसे लगना चाहिए जो बेकार आदमी है, अनट्रेन्ड आदमी है, उसको ऐसा लगे कि यहाँ सचिन जी ने अभी ये बेंगलुरु में एक टेलीविजन के माध्यम से ये कार्य करने का तय किया है, वो सब बेकार और एफिशिएंट लोगों को जानकारी मिले, ऐसी जोरदार बोलना, भारत माता की जय बोलना चाहिए। भारत माता की धन्यवाद। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। आपके एक एक शब्द ने हमारे दिल को छुआ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लेट्स थैंक हिम फॉर हिज काइंड वर्ड्स। With this, we'd like to take a few moments to felicitate and thank our special guests here for making it and spending their very, very valuable time with us. I'd like to request Mr. Sachin Naik to please do the honors. May I request our respected Chief Guest, Honorable Governor of Karnataka, to please accept a token of gratitude from us. Thank you, sir, for coming here today and spending your valuable time with us. I'd like to request Mr. Sachin to please felicitate our next special guest of honor, Shri U.T. Khadar, Health Minister of Karnataka. We'd like to thank U.T. Khadarji for gracing this event. Thank you, sir, for being here today.
I'd like to request Mr. Sachin to please next felicitate our guest of honor this evening, K. Divakar ji. Thank you, sir. And once again, a big round of applause for this lovely panel that we have here with us this evening. We'd like to thank everybody for gracing this event with your valuable presence. Thank you so much.